बॉस, चाइना के बीजिंग के बंद कमरे में एक पॉलिटिकल थ्रिलर चल रहा है और इस बार ट्विस्ट ये है कि टारगेट कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं है बल्कि जनरल जैंग यूसिया है। वही जैंग जो सीएमएस के वाइस चेयरमैन हैं और जिन्हें सी जिनपिंग का सबसे पक्का यार और मिलिट्री अलाई माना जाता है। सवाल सिंपल है, क्या ये सिर्फ करप्शन के खिलाफ जंग है या कुर्सी बचाने का आखिरी गेम? आज पूरी गुत्थी को समझते हैं और क्या डेवलपमेंट हो रही है चाइना में उसको जानेंगे। Imagine being the boss's most trusted enforcer and then secretly shaking hands with the United States. That is exactly what Zhang Yoxia and Liu Zhenli did. As the vice chairman of the Central Military Commission and the chief of the PLA Joint Staff Department, they were the ultimate insiders. They betrayed Xi Jinping and defected from the CCP camp, a move confirmed by NFSC intel. In a dictatorship, loyalty is the only law, and they broke it. But the real story is why they switched sides, because the CCP's inner circle is in full panic mode. The storming capture and 24-hour media blitz wasn't a show of strength. The truth? The CCP is currently at its weakest point. If you want to take down the CCP, the time is now. वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज दुनिया की नजर शायद अमेरिका, ईरान या यूक्रेन पर हो, गाजा पर हो, लेकिन असली गेम ऑफ थ्रोन चाइना के अंदर चल रहा है। चाइना एक रहस्यमयी देश है, वहां से खबर उतनी ही बाहर आती है जितनी दिखाने की इजाजत हो। लेकिन अब जो हो रहा है उसमें पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। पहले कुछ टर्म समझते हैं ताकि हम एक पेज पर बने रहें। पीएलए जो है चाइना की आर्मी है। सीएमसी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन वो बॉडी है जो पूरी आर्मी को कंट्रोल करती है। ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट सीएमसी का ब्रेन है, यानी ऑपरेशनल हेड। इसके चीफ है जनरल लुई जेनिल। शॉकिंग न्यूज ये है कि चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया जो कुछ इस तरह था: सीरियस वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन एंड लॉ। इसका मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में करप्शन या बगावत। और इस बार घेरा डाला गया है जैंग यूसिया और लुई जेनिल के चारों तरफ। दोस्तों, जैंग यूसिया कोई आम जनरल नहीं है, वो सी जिनपिंग के बचपन के दोस्त हैं। दोनों के पिता साथ में काम करते थे। जैंग एक वेटरन है, उन्हें जंग का असली एक्सपीरियंस है। सी के 2012 से किए गए अब तक के सफाई में जैंग हमेशा बचे रहे, यहाँ तक कि उन्हें रिटायरमेंट एज के बाद भी रखा गया। सबको लगा जैंग अनटचेबल हैं, पर अब सीएमएस में सिर्फ 2 लोग बचे हैं जिनकी पावर बरकरार है, जिसमें से खुद सी जिनपिंग है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि 1960 के कल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री उलटफेर चाइना में देखा जा रहा है। On 16th of May 1966, the Communist Party of China issues a directive. The Cultural Revolution begins as a decade-long political campaign. It calls for a purge of capitalist influences and bourgeois thinking in the government, teaching, media, and arts. A huge personality cult of Mao is at the center of the revolution. While other party opponents are removed from the office, Mao's wife Jiang Qing and her close associates are given important posts. Mao's quotes in the Little Red Book are made compulsory reading. With themes such as correcting mistaken ideas, the quotations become the standard by which all revolutionary efforts are judged. A youth organization called the Red Guards springs up throughout the country, preaching the teachings of Mao. The Red Guards travel all over the country, smashing the old culture, destroying much of the cultural heritage. They spearhead the interrogation, humiliation, and beatings of teachers, intellectuals, and traditional enemies of the state. 16 million young people are sent to the countryside for re-education and physical labor. Tens of thousands of officials are accused of being traitors, counter-revolutionaries, and capitalist stooges. President Liu Shaoqi is expelled from the party and dies a lonely death. Marshal Lin Biao, Mao's named successor, flees the country but dies in a plane crash in Mongolia. Mao's wife Jiang Qing and her close associates form what became known as the Gang of Four. They push the leftist agenda against more moderate voices within the party. In September 1976, Mao Zedong dies. The Gang of Four are arrested and their plot to control the country stopped, marking the end of the Cultural Revolution.
अब आते हैं सबसे एक्सप्लोसिव पार्ट पर। जनवरी 2026 में जो एलिगेशन बाहर आए वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थे। जनरल जेंग पर आरोप है न्यूक्लियर सीक्रेट लीक करना। कहा जा रहा है कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन की गोपनीय जानकारी अमेरिका को लीक की है। उनको ब्राइब किंग तक बोला जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है वेपन प्रोक्योरमेंट के अरबों के बजट में से मोटी रिश्वत ली है। और सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल पावर सेंटर, जो सबसे बड़ा डर है कि उन्होंने आर्मी के अंदर अपनी एक अलग शक्ति केंद्र फंक्शन बना ली थी। यही नहीं, जनरल लुई जेनिल को के मोबाइल को सीज कर लिया गया है। सोचिए, टॉप जनरल के फोन चेक हो रहे हैं। इतनी दहशत है कि हजारों ऑफिसर को जांच के घेरे में उठा लिया गया है। China's most senior military general is under investigation for leaking sensitive information about the country's nuclear weapons to the US. That's according to the Wall Street Journal. The paper, citing people familiar with a closed-door briefing, says the allegations against General Zhang Youxia stem from a probe into a nuclear security breach. He's also being investigated for bribery allegations. China's defense ministry has confirmed the probe but has not released details. Zhang was previously seen as one of Chinese President Xi Jinping's closest and most trusted military allies. In October, 9 top generals were purged in one of the largest military crackdowns in decades. आखिर सी जिनपिंग इतने डरे हुए क्यों हैं? इसे कहते हैं द वेनेजुएला मॉडल। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को हटाने की कोशिश तब हुई जब उनके ही जनरल ने अमेरिका के साथ मिलकर पोस्ट मादुरो प्लान बनाना शुरू किया। सी को लगता है कि असली खतरा सड़कों पर प्रोटेस्ट करने वाली जनता से नहीं, बल्कि उनके बगल में बैठे जनरल से है, जो फॉरेन एजेंसीज के टच में हो सकते। याद कीजिए, मई जून 2025 में सी जिनपिंग पूरे 14 दिन तक गायब थे। इंटरनेशनल मीडिया ने उनके नाम के आगे प्रेसिडेंट हटाना शुरू कर दिया था। एजेंसी के डिसीजन मेकिंग नाम की नई बॉडी की अफवाहें उड़ने लगा कि तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन सी जिनपिंग वापस आए और वापस आते ही उन्होंने उन सबका सफाया किया जिन्होंने उनकी एब्सेंस में सिर उठाया था। इसे कहते हैं चेक एंड एलिमिनेट। डेटा देखिए दोस्तों, 2 लाख से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल को 2012 से अब तक सजा दी जा चुकी है। 120 टॉप कमांडर्स हटाए गए हैं। रॉकेट फोर्स जो न्यूक्लियर मिसाइल संभालती हैं, वहां के 29 टॉप ऑफिसर या तो जेल में हैं या तो गायब हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस का तो यहाँ तक की दावा है कि चाइना की मिसाइल में फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ है। इतना डीप करप्शन है कि चाइना की टॉप 8 डिफेंस कंपनीज का रेवेन्यू 2024 में 10% तक गिर गया। तो क्या इसका असर ताइवान पर पड़ेगा? एक्सपर्ट मानते हैं कि हाँ, पड़ेगा। जब आर्मी के अंदर ही इतनी आग लगी हो तो कोई देश बड़ी जंग नहीं लड़ सकता। शायद इसीलिए ताइवान पर हमला टल रहा है। एंड में बात करते हैं, क्या सी जिनपिंग सुपर पावरफुल बन गए हैं या वो इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि अपने बचपन के दोस्त को भी जेल भेज रहे हैं? आपको क्या लगता है, ये करप्शन की सफाई है या कुर्सी बचाने की लड़ाई? कमेंट में अपना राय जरूर दें। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।